muscles of the back. Muscles of the back, the learning objective. At the conclusion of these lectures, students should be able to distinguish between different groups of back muscles, compare between groups of back muscles as regard their nerve supply and action, describe the attachment of each muscle as well as its nerve supply and action. Describe the clinical significance of muscles of the back. Okay? The muscles of the back can be divided into three groups. Intermediate and deep. The superficial associated with movement of the shoulder. An intermediate group associated with movement of thoracic cage. And the deep group associated with the movement of vertebral column. The deep muscles develop embryologically in the back and are thus described as intrinsic muscles. The deep group of muscles that is developed embryologically in the back are thus described as an intrinsic group. The muscles, the superficial and the intermediate muscles do not develop in the back and are classified as an extrinsic muscles. In extrinsic group, the superficial and intermediate include. So first we are discussing the superficial back muscles. The superficial back muscles are situated underneath the skin and superficial fascia. They originate from the vertebral column and attach to the bones of shoulder. The clavicle, scapula, and the humerus. All these muscles are therefore associated with movement of upper limbs. Okay? The extrinsic group of muscles, we include the superficial back muscles. The superficial back muscles are situated underneath the skin and superficial fascia. Means these muscles are superficial. They lie below the skin and superficial fascia. They originate from vertebral column. ये arise vertebral column से होंगे और इनकी attachment जो होगी ना वो bones of shoulder में होगी, या तो clavicle में होगी, scapula में होगी और humerus में होगी. ये जो जितने भी मसल्स हैं सुपरफिशियल ग्रुप में ये एसोसिएट होते हैं मूवमेंट ऑफ अपर लिम्ब से. सो इन सुपरफिशियल ग्रुप बैक ऑफ मसल्स टू सेट्स ऑफ मसल्स होंगे. जो हमारे पास सुपरफिशियल बैक मसल्स हैं उसमें हमारे पास टू सेट्स हैं मसल्स के. वन इज मसल्स कनेक्टिंग वर्टिब्रल कॉलम टू द स्कैपुला. अब मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि जो बोन्स थी अपर लिम्ब की, स्कैपुला, ह्यूमरस और क्लैविकल, उसके हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फर्दर टू के अंदर. जैसे आपके मसल्स दैट कनेक्ट वर्टिब्रल कॉलम टू द स्कैपुला मूव स्कैपुला थ्रू द शोल्डर गर्डल जॉइंट इंक्लूड ट्रेपेजियस, लेवाटाइल स्कैपुली, rhomboid minor and major. And the other group, the muscles connecting vertebral column to the humerus, means they are responsible for the movement of the humerus through shoulder joint. In this group include the latissimus dorsi muscle. Okay. So you can say the superficial back muscles include how many muscles? The trapezius, levator scapulae, rhomboid minor, rhomboid major, and the latissimus dorsi. 5 muscles are present in this group. They are very important muscles. The trapezius and latissimus dorsi, these two muscles lie superficially, with trapezius covering the rhomboids and the levator scapulae. जो rhomboid मेजर और माइनर हैं और लेवाटर स्कैपुली हैं वो ट्रेपेजियस की कवरिंग में होते हैं. जब हम ट्रेपेजियस को रिमूव करेंगे तो ये दो मसल्स हमें नजर आएंगे, अदरवाइज ये नजर नहीं आएंगे. ये कवर होंगे, अंडर द कवर ऑफ ट्रेपेजियस होंगे. मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी, उसमें आप लोग देखिएगा. तो ये जो हमारे पास 5 मसल्स हैं इसमें से ट्रेपेजियस और लैटिमस डोर्साई होते हैं, ये सुपरफिशियली होते हैं. और बाकी जो रोम्बोइड
मेजर, माइनर, लेवेटर स्कैपुली होते हैं, ये ट्रेपेजियस के कवर में होते हैं। ये समझ लें हमने एक दूसरे के ऊपर शीट्स लगाई हुई कवरिंग की, कुछ सुपरफिशियल है, उसको हटाएंगे तो डीप, इंटरमीडिएट नजर आएंगे, इंटरमीडिएट को हटाएंगे तो डीप नजर आएंगे, लेकिन ये सुपरफिशियल ग्रुप है। ऑल जितने भी इंक्लूड है ये सुपरफिशियल में है। सुपरफिशियल में जो ट्रेपेजियस और लैटिमस डोर्साई ये मोर सुपरफिशियल है, इनके नीचे ही आपको मिल जाएंगे लेवेटर स्कैपुली, रोम्बोइड मेजर एंड द माइनर। याद रखिएगा ये सुपरफिशियल ग्रुप जो मसल्स का है बिल्कुल कहाँ पे लाई करेगा, ये स्किन और सुपरफिशियल फेशिया के नीचे होता है। ये आपको सुपरफिशियल ग्रुप नजर आ रहा है, देखें ये आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे ये ट्रेपेजियस नजर आ रहा है, ये ब्रॉड बिल्कुल एक ट्रेपेजियस ये आपको नजर आ रहा है, ट्रेपेजियस मसल्स है। और ये जो नीचे आप देखेंगे यहाँ पे लैटिमस डोर्साई मसल नजर आ रहा है, ठीक है। अब जब ट्रेपेजियस को मैं रिमूव कर रही हूँ, कौन सी साइड पर है, ये राइट साइड पर है। जब ये राइट साइड पे मैं रिमूव कर रही हूँ ट्रेपेजियस मसल्स को, तो हमें यहाँ पे जो नजर आ रहे हैं मसल्स वो लेवेटर स्कैपुली, सबसे ऊपर लेवेटर स्कैपुली नजर आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल नेक के यहाँ पे आपको लेवेटर स्कैपुली नजर आ रहा है, उसके नीचे आपको नजर आ रहा है रोम्बोइड माइनर, फिर मोस्ट आपको उनके नीचे नजर आ रहा है रोम्बोइड मेजर। तो आपको ये 3 जो मसल्स होंगे ट्रेपेजियस के नीचे आपको मिलेंगे। The first muscles of this group is trapezius. Trapezius is a broad, flat, and triangular muscles. The muscles on each side form a trapezoid shape. It is the most superficial of all back muscles. Their attachment originates from the skull, ligamentum nuchae, spinous process of C7 to T12 vertebra. Then after take origin from these areas, skull, ligamentum nuchae, and spinous process C7 and T12, the fibers attached to the clavicle. इसके फाइबर यहाँ से ओरिजिन लेने के बाद जाएंगे कहाँ पे अटैचमेंट के लिए, वो फाइबर कन्वर्ज होंगे और जाके अटैच होंगे क्लेविकल, एक्रोमियम एंड द स्कैपुला स्पाइन। इन 3 प्लेसेस पे जाके ये फाइबर्स जो हैं वो अटैच हो जाते हैं। इसकी इनोवेशन जो होती है, इसकी इनोवेशन मोटर इनोवेशन जो होती है, जितने भी हमारे पास मसल्स आ जाते हैं, एक्सटेंसिव मसल्स होते हैं, वो सप्लाई होते हैं एंटीरियर रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व से, ओके, एक्सेप्ट ट्रेपेजियस। ट्रेपेजियस सप्लाई नहीं होता हमारे पास एंटीरियर रेमाई से, ये सप्लाई होता है एक्सेसरी नर्व। एक्सेसरी नर्व क्या है, ये क्रेनियल नर्व है, क्रेनियल नर्व 11, टोटल 12 क्रेनियल नर्व होती है, उसमें से 11 नंबर जो है वो एक्सेसरी नर्व का है। ये मोटर इनोवेशन जो है एक्सेसरी नर्व मींस क्रेनियल नर्व 11 से लेती है। और प्रोप्रोसेप्शन फाइबर जो होते हैं इसके C3 एंड C4 स्पाइनल नर्व से आते हैं। अब इसके एक्शन में क्या आ जाता है आपके पास कि इसका जो सबसे ऊपर इसके फाइबर्स होते हैं, अपर फाइबर, वो अपर फाइबर्स जो होते हैं उनका मेन जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है वो स्कैपुला को एलिवेट करते हैं। हम स्कैपुला को ऊपर मूव करेंगे, अपने शोल्डर्स को एलिवेट करती है स्कैपुला को, एंड रोटेट इट ड्यूरिंग एब्डक्शन ऑफ आर्म। इसके जो मिडिल फाइबर हो जाते हैं वो मिडिल फाइबर स्कैपुला को रिट्रैक्ट करते हैं, एंड लोअर फाइबर जो होते हैं, इसके मोस्ट लोअर फाइबर जो होते हैं वो स्कैपुला को पुल करते हैं। inferiorly means depress the scapula. So these muscles के upper fiber elevate the scapula, middle fiber retract the scapula, and lower fiber depress the scapula. Together these 3 fibers जो होते हैं उनकी हेल्प से आप शोल्डर्स को श्रगिंग कर सकते हैं। Upper fiber elevate the scapula, middle fiber retract the scapula, lower fiber depress the scapula. Combination of these muscles fiber allow the rotation of the scapula. The second muscles is latissimus dorsi. First we show these trapezius muscles. This one is trapezius. ये trapezius
आप ऊपर देखेंगे स्कल के यहाँ पे नीचे आपको नजर आएगा, इसकी ओरिजिन नजर आएगी ट्रेपेजियस मसल्स की, कि कहाँ से ओरिजिन ले रहा है ये मसल्स। ये ओरिजिनेट हो रहा है मसल्स स्कल से हो रहा है, ये आपको स्कल के एरिया से नजर आ रहा है, ठीक है। लिगामेंटम नकी है, ये लिगामेंटम नकी आ जाता है, उससे ले रहा है ओरिजिन। और ये स्पाइनस सेंट्रली आपके पास स्पाइनस प्रोसेस आ रहे हैं, ये सारे स्पाइनस प्रोसेस कहाँ से, C7 से स्टार्ट हो रहे हैं, T12 तक जा रहे हैं, ये स्पाइनस प्रोसेस यहाँ से ले रहे हैं। और ये जितने भी फाइबर्स ही कन्वर्ज हो रहे हैं, मीडियल टू लैटरली मूव कर रहे हैं और जाके अटैचमेंट ले रहे हैं, आप देखिएगा इसकी अटैचमेंट नजर आएगी आपकी कि अपर फाइबर जो मोस्ट ऊपर वाले फाइबर हैं, अपर फाइबर क्या आते हैं, बीच वाले मिडिल फाइबर, ये लोअर फाइबर, ये फाइबर जाके अटैच हो रहे हैं क्लेविकल के ऊपर, अपर फाइबर क्लेविकल, एक्रोमियन। जो सेकंड मसल्स आ जाता है लेटिमस डोर्साई, ये देखें लेटिमस डोर्साई मसल है, ये आपको ये ब्रॉड मसल्स नजर आ रहा है, ठीक है। इस मसल्स को देखेंगे ना तो इसकी ओरिजिन कहाँ से आ रही है, इसकी लोअर, आपके पास ये बैक है, ये बैक का अपर पोर्शन है और ये नीचे वाला लोअर पोर्शन है बैक का, तो ये मसल्स ओरिजिनेट हो रहा है लोअर पार्ट ऑफ द बैक से, वाइड एरिया को ये कवर कर रहा है ये मसल्स, means this muscles has a broad origin. This muscles has a broad origin. This muscles arising from where? This muscles arising is centrally the spinous process. Which one is spinous process? T6 to T12 vertebra. Thoracolumbar fascia. ये फेस क्या जाता है आपके पास? And inferior three ribs. Then these fibers are converged into a tendon that attach the intertubercular sulcus of the humerus. ये फाइबर आपको करते हुए ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं और ये ह्यूमरस पे जाके अटैच हो जाएंगे इंटरट्यूबरकुलर सर्कस। मैं इसकी आपको स्लाइड्स दिखाती हूँ, पिक्चर आपने देख ली इसकी डायग्राम। Latissimus dorsi originate from the lower part of the back where it covers area. Attachment has a broad origin, as you all are seeing. Arising from the spinous process of T6 to T12, thoracolumbar fascia, iliac crest, inferior three ribs. The fiber converges into a tendon that attaches to the intertubercular sulcus of the humerus. Muscles की डायरेक्शन आप लोगों को याद होनी चाहिए कि मसल्स कहाँ से ओरिजिन ले रहे हैं और किस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। अब ये जा रहा है, ये लोअर बैक से ओरिजिन लेता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है ह्यूमरस की तरफ अटैचमेंट के लिए। इनोवेशन इसकी आपके पास थोरैकोडोर्सल नाव आ जाती है। फंक्शन इसका क्या होता है? फंक्शन इसका होता है ये एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड करेगा, एडक्ट करेगा एंड मीडियली रोटेट द अपर लिम्ब। मीन्स ये मसल जब आप एक्शन करते हो ना, क्लाइंबिंग एक्शन करते हैं, क्लाइंबिंग एक्शन में आप क्या करते हैं, अपने लिम्स को एक्सटेंड करते हैं और एडक्शन करते हैं एंड मीडियली रोटेट करते हैं और कैसे क्लाइंब करते हैं इस एक्शन में। लेकिन ये क्लाइंबिंग एक्शन जो है ना, इसका अकेले परफॉर्म नहीं करता है, ये एक्शन जो है टुगेदर विद अनदर मसल्स करता है, पेक्टोरस मेजर मसल्स। तो इसका जो आपके पास क्लाइंबिंग में ये बहुत हेल्पफुल है, ये मसल्स एक्सटेंड करता है, ये एडक्ट करता है एंड मीडियली रोटेट करता है अपर लिम्ब। ओके, इसका एक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। नर्व सप्लाई एक्शन, मसल्स की डायरेक्शन आपको आनी चाहिए। देन थर्ड मसल्स इज लेवेटर स्कैपुली। ये लेवेटर स्कैपुली और रोम्बोइड मेजर और माइनर मैंने आपको बताया था, ये मसल्स कवर में ट्रेपेजियस से। ट्रेपेजियस को रिमूव करोगे तो ये मसल्स आपको नजर आते हैं। ये जो आपके पास लेवेटर स्कैपुली मसल्स होता है, इसके मैं डायग्राम्स पहले आपको दिखाती हूँ, उसके साथ साथ मैं आपको इसके ओरिजिन हो, ये डायग्राम है। इसमें आप लेवेटर सबसे जो ऊपर मसल्स आपको यहाँ पे नेक के यहाँ पे नजर आ रहा है, जो स्कैपुला से ओरिजिन लेता हुआ जा रहा है, ये मसल्स लेवेटर स्कैपुली। लेवेटर स्कैपुली ये स्मॉल स्टेप लाइक मसल्स है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये स्मॉल स्टेप लाइक मसल्स होता है। ये बिगिन होता है नेक में एंड डिसेंड होता है
ये नेक से आ रहा है और डिसेंड होकर अटैच होगा जाके स्कैपुला पर। ओरिजिनेट कहाँ से हुआ? नेक से हुआ। नेक के ट्रांसफर प्रोसेस जो आपके पास जो वर्टिब्रा है C7 से C4 वर्टिब्रा, जो अपर 4 वर्टिब्राज हैं, उनके ट्रांसफर प्रोसेस होते हैं, उनसे ये ओरिजिनेट होगा और अटैच होगा टू द मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। स्कैपुला आपने बोन की है, ये जो आपके पास बॉर्डर होता है ये मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला होता है। ये आपको बीच में आपको नजर आएगा, यहाँ पे स्पाइन नजर आएगा रन करता हुआ, जो मीडियल टू लैटरली मूव करता हुआ स्पाइन है, स्पाइन ऑफ द स्कैपुला है। तो ये अटैच होगा कहाँ से, कहाँ जाके अटैच होगा? ये मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, अपर पोर्शन में इसके अटैच होगा, स्कैपुला के मीडियल बॉर्डर में के अपर पार्ट में अटैच होगा। ओरिजिनेट हमारे पास ये ट्रांसफर प्रोसेस से ले रहा है, अपर 4 सर्वाइकल वर्टिब्रास की जो ट्रांसफर प्रोसेस है उनसे ओरिजिनेट होके नीचे डाउनवर्ड जा रहा है और स्कैपुला से जाकर अटैचमेंट इसने कर ली। ठीक है, अब इस मसल्स की आपने डायग्राम देख ली किस तरीके से ये डायरेक्शन है मसल्स की। ये मसल्स जो है ना ऊपर से आ रहा है और नीचे मूव हो रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है इसकी डायरेक्शन। The levator scapula is small step-like muscle. It begins in the neck and descend to attach to the scapula. Originate from the transfer process of upper 4 vertebrae and attach to the medial border of the scapula. Innervation dorsal scapular nerve. इसकी जो इनोवेशन है वो आप याद रखिएगा, मसल्स उनके एक्शन इनोवेशन आपको आने चाहिए। फंक्शन क्या है? लेवेटर स्कैपुली मींस एलिवेट द स्कैपुला, लेवेटर। So it elevates the scapula. इसके नेम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसका क्या एक्शन। रोम्बोइड, रोम्बोइड जो है ये भी आपके पास स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल्स आ जाते हैं, 2 आ जाते हैं। There are 2 rhomboid muscles, major and minor. The rhomboid minor is situated superiorly to the major. Means आपके पास जो minor muscles है वो ऊपर मिलेगा major से, minor ऊपर होगा, major नीचे होगा। ये देखिए, अब ये देखें, ये आपको ये नजर आ रहा है, ये फर्स्ट ऊपर से नेक से आ रहा है मसल्स, यहाँ से आ रहा है ट्रांसफर प्रोसेस से, अपर से 4 से आ रहा है लेवेटर स्कैपुली और नीचे डाउनवर्ड जाके स्कैपुला पे अटैच हो रहा है। ये जो पहला मसल्स था, यहाँ पे 3 मसल्स मैंने आपको दिखाया जो ट्रेपेजियस के नीचे हैं। कौन से 3 मसल्स है? लेवेटर स्कैपुली है फर्स्ट, देन आपके पास सेकंड मसल्स जो है वो रोम्बोइड माइनर आ जाता है और इसके नीचे आपको रोम्बोइड मेजर मसल्स आ जाता है। ठीक है, ये सुपरफिशियल मसल्स हैं, 3 इंक्लूड सुपरफिशियल ग्रुप में आते हैं। ये सुपरफिशियल मींस एक्सटेंसिव जो ग्रुप है पूरा हमारे पास मसल्स का, उसका जो फर्स्ट ग्रुप है सुपरफिशियल, उसमें आपके पास आ जाते हैं 5 मसल्स आ जाते हैं। ट्रेपेजियस था, लैटिमस डोर्साई था, लैटिमस डोर्साई लोअर बैक पर होता है, ट्रेपेजियस ऊपर होता है, अपर एरिया पर होता है, अपर बैक पर होता है। ट्रेपेजियस को रिमूव करेंगे तो हमें ये 3 मसल्स नजर आएंगे, लेवेटर स्कैपुली, रोम्बोइड माइनर, रोम्बोइड मेजर। और आपने देखा रोम्बोइड माइनर को भी देख रहे हैं, नीचे लेवल आपको रोम्बोइड मेजर मिल रहा है मसल्स। ठीक है, तो रोम्बोइड मेजर को करेंगे तो रोम्बोइड मेजर जो है वो ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ, मींस स्पाइनस प्रोसेस। कौन सी स्पाइनस प्रोसेस? T12 से T5 वर्टिब्रा, उनके स्पाइनस प्रोसेस से ओरिजिनेट होगा। अटैच टू द मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला बिटवीन स्कैपुलर स्पाइन एंड इंफीरियर एंगल। ये जो आपके पास स्कैपुलर स्पाइन है ना, ये स्कैपुलर स्पाइन और ये इंफीरियर एंगल, ये स्कैपुलर स्पाइन था और ये इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला, इन दोनों के दरमियान में जो मीडियल बॉर्डर पर जो गैप आ रहा है ना, वहां पर रोम्बोइड मेजर जाकर अटैच हो जाता है। ठीक है, स्पाइनस प्रोसेस से ओरिजिनेट लेके स्कैपुला पर जाके ये मसल्स अटैच हो गया। कहां पर? जो स्पाइन ऑफ द स्कैपुला और इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला के बीच में जो गैप आ रहा है मीडियल बॉर्डर का, वहां पर जाके मसल्स अटैच हो जाएगा। डोर्सल स्कैपुलर नर्व इसकी नर्व सप्लाई आ जाती है। फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन ये होता है, ये रिट्रैक्ट एंड रोटेट द स्कैपुला। रिट्रैक्ट स्कैपुला के फंक्शन में आता है, रिट्रैक्ट करना, प्रोट्रैक्ट करना। ठीक है, तो ये इलेवेट करना, डिप्रेस करना, क्लेविकल को आप देते हो ना, बहुत सारे एक्शन अपने शोल्डर्स की हेल्प से देते हैं, आप बहुत सारे शो करते हैं एक्शन के, हम शोल्डर से बता देते हैं। तो रिट्रैक्ट करता है ये स्कैपुला को पीछे की तरफ बैकवर्ड
मूव करेंगे स्कैपुला को रिट्रैक्ट कहलाएगी और रोटेट करेगा स्कैपुला को। रोम्बोइड माइनर मसल्स, रोम्बोइड माइनर जो है ये मसल्स ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ C7 to T1 वर्टिब्रा। मींस आपके पास जो C7 to T1 वर्टिब्रा है वहां से ओरिजिनेट हो रहा है जो मसल्स के स्पाइनस प्रोसेस से, वो मसल्स रोम्बोइड माइनर होता है। ये रोम्बोइड मेजर मसल्स है, इसके ऊपर होता है, नीचे नहीं होता है, ठीक है। बिटवीन लेवाटर स्कैपुली और रोम्बोइड मेजर आपको ये रोम्बोइड माइनर मिलेगा। मैं डायग्राम में दोबारा आपको शो करूंगी। अटैच कहां पर होगा ये अटैच हो रहा है मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला पर एट द लेवल ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला। जिस लेवल मीडियल बॉर्डर पे जिस लेवल से स्टार्ट हो रही है ना स्पाइन ऑफ द स्कैपुला, वहां पे जाके ये अटैचमेंट ले लेगा मसल्स। नाउ इसकी डोर्सल स्कैपुलर नर्व है, फंक्शन इसका सेम है जो रोम्बोइड मेजर का था, रिट्रैक्ट एंड रोटेट द स्कैपुला। आई एम अगेन शोइंग यू दिस मसल्स। ग्रीन वन इज लेवाटर स्कैपुली, उसके नीचे रोम्बोइड माइनर देन मेजर, ठीक है। ये हमने जो राइट साइड पे है ट्रेपेजियस को रिमूव कर दिया है, ठीक है। ट्रेपेजियस को यहाँ पे रिमूव कर दिया है हमने राइट साइड पे, और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो आपको नजर आ रहा है ब्राउन कलर का, यहाँ पे ट्रेपेजियस है। जब ट्रेपेजियस को रिमूव करेंगे तो 3 मसल्स नजर आएंगे। अपर साइड पे आपको बैक के ट्रेपेजियस ब्रॉड मसल्स नजर आ रहा है। नीचे साइड, नीचे आप जाएंगे लोअर बैक पर आपकी, तो आपको एक और ब्रॉड मसल नजर आएगा जिसे लेटिमस डोर्सल है। ये हमारे पास सुपरफिशियल ग्रुप था मसल्स का। एक्सटेंसिव का सुपरफिशियल ग्रुप था, ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है। आप लोगों को इसकी हर चीज आनी चाहिए, इसके एक्शंस आने चाहिए, इसकी नर्व सप्लाई आनी चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो हम करेंगे, एक डिस्ट्रिक्यूज है आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप बाद में दीजिएगा मुझे, कुछ सोचिएगा जाके क्या होना चाहिए। A 35-year-old man complained of pain in his right upper side of the back. Upper side of the back. On examination, elevation and retraction of scapula was painful. Which superficial muscles of the back to produce shrugging motion? Shrugging motion बनता कैसे? क्या करते हैं shrugging में आप? आप क्या करते हैं? आप स्कैपुला को इलेवेट करते हैं, रिट्रैक्ट करते हैं एंड डिप्रेस करते हैं। ये कॉम्बिनेशन में होता है, तो इसका क्या आंसर होना चाहिए? A trapezius. A. Yes, correct answer. Okay. Trapezius. ये 5 असेंड करेंगे और अटैच होंगे। कहां पर अटैच होंगे? ट्रांसफर प्रोसेस की तरफ जा रहे होंगे। ये ट्रांसफर प्रोसेस आपके लैटरली ट्रांसफर प्रोसेस होंगे। ये C1 to C3 जो है ना, वो ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा मींस थोरेसिक वर्टिब्रा के स्पाइनस प्रोसेस से आके ओरिजिनेट हो रहे हैं, और ट्रांसफर प्रोसेस पे किसके अटैच हो रहे हैं? सर्वाइकल वर्टिब्रा से। कौन सी सर्वाइकल वर्टिब्रा? C1 to C3। इनोवेशंस में आपकी इसको पहले भी बता चुकी हूँ। इनोवेशंस वही होगी जो आपके पास उनकी इनोवेशंस थी, कैपिटिस की थी, पोस्टीरियर एमायो सर्वाइकल स्पाइनल नर्व, लोअर सर्वाइकल स्पाइनल नर्व। तो वो अपर साइड पे था तो उसकी अपर थी, ये लोअर साइड पे तो उसकी लोअर सर्वाइकल स्पाइनल। एक्शन सेम, रोटेट हेड टू सेम साइड। अब इंटेंसिटी का आपके पास जो मसल्स थे उसका जो सेकंड ग्रुप है वो है इंटरमीडिएट, इंटेंसिटी का है। There are 3 intermediate intrinsic back muscles, the iliocostalis, longissimus and spinalis. देखिए सुपरफिशियल ग्रुप जो हमने पढ़ा था, फर्स्टली जो एक्सटेंसिव ग्रुप था ना हमारे, उसके पास सुपरफिशियल और इंटरमीडिएट थे। उसका सुपरफिशियल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारे पास इंटेंसिटी ग्रुप आ जाता है, इसका इंटरमीडिएट ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके ग्रुप को आप
इसमें 3 इंटरमीडिएट इंट्रिंसिक बैक मसल्स हैं। कौन से इंटरमीडिएट 3 मसल्स हैं? इलियोकोस्टलिस, लॉन्गिस्मस एंड स्पाइनलिस। टुगेदर दिस मसल्स फॉर्म अ कॉलम नोन एज इरेक्टर स्पाइनम। इन तीनों मसल्स को कलेक्टिवली एक कॉलम बनाते हैं, ये पूरा, उसका नाम होता है इरेक्टर स्पाइनम। बड़ा इंपॉर्टेंट मसल्स है ये इरेक्टर स्पाइनम। द इरेक्टर स्पाइन इज सिचुएटेड कहां पर होगा? पोस्टीरियर लैटरली टू द स्पाइनल कॉलम between the vertebral spinous process and the costal angle of the rib। जो रिब्स की costal angle और spinous process होता है ना, उनके दरमियान में होता है ये इरेक्टर स्पाइन। इरेक्टर स्पाइन क्या होता है? 3 मसल्स को कलेक्टिवली कहते हैं हम इरेक्टर स्पाइन। All 3 muscles can be subdivided by their superior attachment। ये तीनों मसल्स जो है ना अपनी अटैचमेंट की वजह से फर्दर डिवाइडेड हुए हैं। कहाँ? लंबोरम, थोरैसिक, सर्वाइसिस एंड कैपिटिस। मींस जो लंबर एरिया पे अटैचमेंट लंबोरम की लाएगी, थोरैसिक पे होंगे तो थोरैसिक की लाएगी, सर्वाइसिस सर्वाइकल एरिया पर है, कैपिटिस इसकल साइड पर आ जाती है। दे आल्सो ऑल हैव अ कॉमन टेंडिनस ओरिजिन व्हिच अराइजेस फ्रॉम, इनकी कॉमन टेंडिनस ओरिजिन कहाँ से होती है? लंबर एंड लोअर थोरैसिक वर्टिब्रा। जो लंबर वर्टिब्रास हैं और लोअर थोरैसिक वर्टिब्रा हैं वहां से ओरिजिनेट होंगे, ये सैक्रम बोन से होंगे। ठीक है, आपके पास लंबर की 5 वर्टिब्रास हैं, वो 5 आ जाएंगी, लोअर थोरैसिक वर्टिब्रा में T6 से T12 आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ से इनकी ओरिजिन आ रही है। सैक्रम बोन है, इलियक क्रेस्ट की पोस्टीरियर स्पेक्स आ रही है, इलियक क्रेस्ट आता है हिप बोन में, उसकी पोस्टीरियर स्पेक्स आ रही है, और 2 लिगामेंट है, सेक्रोइलिक एंड सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट। ठीक है, इनसे ओरिजिनेट हो रही है। इसका जो फर्स्ट मसल है इलियोकोस्टलिस, इलियोकोस्टलिस मसल्स इज लोकेटेड laterally within the erector spine। जो इरेक्टर स्पाइन एक कॉलम बन रहा था ना, उसके मोस्ट लेटरल जो मसल्स है ना, वो इलियोकोस्टलिस है। इट इज एसोसिएटेड विद रिब्स एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। जैसे मैंने पहले बताया था, अटैचमेंट के बेसिस पे इसको जो इरेक्टर स्पाइन है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है, लंबोरम में, थोरैसिक में, सर्वाइसिस में। लंबर एरिया पर है जो लंबोरम के लायक का पोर्शन, थोरैसिक पे है वो थोरैसिक एंड सर्वाइसिस पे। अराइज फ्रॉम द कॉमन टेंडिनस ओरिजिन। कॉमन टेंडिनस ओरिजिन जो मैंने आपको बताई थी उससे अराइज हो रहा है। एंड अटैच कहां पर होगा? कोस्टल एंगल ऑफ द रिब एंड द सर्वाइकल ट्रांसफर प्रोसेस। इस मसल से आपको डायग्राम दिखाता हूं, इजी हो जाएगा। ये इलियोकोस्टलिस मसल से ब्राउन कलर का मोस्ट लेटरल है, तो इरेक्टर स्पाइन 3 मिलके इरेक्टर स्पाइन बना रहे हो तो मोस्ट लेटरल आपके पास इलियोकोस्टलिस आ जाता है। ये इलियोकोस्टलिस की आपको कॉमन टेंडिनस ओरिजिन है, तो मैंने पहले बता दिया आप लोगों को इनकी ओरिजिन। कहाँ पे अटैच हो रहा है? ये फाइबर जा रहे हैं कोस्टल एंगल पे अटैच हो रहा है, रिब के, ये कोस्टल एंगल ऑफ द रिब्स है, वहां पे अटैच हो रहा है। एंड जा रहा है सर्वाइकल, ऊपर जा रहा है सर्वाइकल के, किससे? सर्वाइकल वर्टिब्रा के ट्रांसफर प्रोसेस पे जाके अटैच हो रहा है। ये मींस रिब पे अटैचमेंट दे रहा है। ठीक है, रिब पे अटैचमेंट देने के बाद ये अटैच हो रहा है जाके सर्वाइकल ट्रांसफर प्रोसेस। ठीक है, ये था इलियोकोस्टलिस मसल्स। अटैचमेंट के बाद इसकी इनर्वेशन से पोस्टीरियर माइल, ऑल मसल्स जितने भी इंटरेस्टिंग है वो पोस्टीरियर माइलोस्पाइनल नर्व से सप्लाई होते हैं। एक्शन क्या है इसका? एक्शन इसका आ जाता है यूनिलैटरल। एक्ट यूनिलैटरली मींस सिंगल मसल्स अगर एक्ट करेगा इसका तो लैटरली फ्लेक्स करेगा वर्टिब्रल कॉलम को। जब आप राइट साइड के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो राइट साइड आप ऐसे लैटरली फ्लेक्स कर सकते हो अपने मसल्स को। ठीक है, अगर बायलैटरली दोनों मसल्स मिलकर एक्ट करेंगे, दोनों मसल्स मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेगा? एक्सटेंड द वर्टिब्रल कॉलम इन हैंड। क्या करेगा? ये वर्टिब्रल कॉलम को फ्लेक्स पोजीशन से एक्सटेंड करवाएगा। कौन सा?
दोनों मसल मिलकर करेंगे। बायलैटरली इसका एक्शन है एक्सटेंशन का, यूनिलैटरली लेटरली फ्लेक्स करेगा। तो इसके एक्शन को आप याद रखिएगा कि यूनिलैटरल जब मसल्स एक्ट करेगा तो सेम साइड, अगर राइट साइड का मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो आप लेटर फ्लेक्शन कर रहे हो तो आपका सेम साइड, राइट साइड पे आप लेटरली फ्लेक्स कर रहे हो तो राइट साइड का मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जब आप एक्सटेंड कर रहे हो अपने वर्टिब्रल कॉलम को फ्रॉम द फ्लेक्स पोजीशन, वर्टिब्रल कॉलम एंड हेड को फ्लेक्स पोजीशन से, तो बायलैटरली मसल्स एक्ट करते हैं। मींस दोनों मसल्स जो है साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्सटेंशन का एक्शन होगा। ठीक है, ये इस मसल्स की इंपॉर्टेंट एक्शन था जो आपको पता होना चाहिए, और इनकी कॉमन टेंडिनस ओरिजिन भी पता होना चाहिए मसल्स की। फिर जो आपके पास आ जाता है सेकंड मसल्स आ जाता है हमारे पास इंटरमीडिएट में लॉन्गिस्मस। लॉन्गिस्मस मसल इज सिचुएटेड बिटवीन द इलियोकोस्टलिस एंड स्पाइनस। जो आपके पास मोस्ट लेटरल इरेक्टर स्पाइनी का मसल है इलियोकोस्टलिस, और जो मोस्ट मीडियल आ जाता है वो स्पाइनलिस। उन दोनों के दरमियान में ये मसल हो जाता है जिसका नाम होता है लॉन्गिस्मस। मैं आपको डायग्राम में लॉन्गिस्मस, ये येलो कलर का जो मसल्स आ रहा है ना, ये लॉन्गिस्मस मसल्स है। ठीक है, ये लॉन्गिस्मस मसल जो होती है इट इज द लार्जेस्ट ऑफ 3 कॉलम। जितने भी आपके पास दो बाकी मसल्स है स्पाइनस और इलियोकोस्टलिस, उसमें से लार्जेस्ट ये है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स फॉर 6 सर्वाइसेस एंड कैपिटल्स। अटैचमेंट arises from the common tendinous origin। जैसे मैंने पहले आपको बताया था common tendinous origin क्या है, तीनों की एक ही है, वहां से origin लेगा ये, और अटैच होगा to the lower ribs। the transfer process of C2 and T12 vertebrae से and mastoid process of the skull। ये इस मसल्स को देखो कहाँ कहाँ जाके अटैचमेंट दे रहा है। ये कॉमन टेंडिनस ओरिजिन जा रही है मसल्स की। ठीक है, ये कॉमन टेंडिनस ओरिजिन लेने के बाद ये कहाँ अटैच हो रहा है, ये लोअर रिब्स है। ये जितनी लोअर रिब्स है ना उन पे जाके अटैचमेंट ले रहा है, लोअर रिब्स पे अटैचमेंट दे रहा है थोरेसिक। ठीक है, और ट्रांसफर प्रोसेस पे ले रहा है अटैचमेंट। ट्रांसफर प्रोसेस किसके, C2 से T12 वर्टिब्रा, मींस ऑल थोरेसिक वर्टिब्रा के ट्रांसफर प्रोसेस पे ले रहा है, और C2 से स्टार्ट कर रहा है, और ऑल थोरेसिक आपके पास जो वर्टिब्रा है उनके ट्रांसफर प्रोसेस पे जाके अटैच हो रहा है। और स्कल के ये जो मैस्टोइड प्रोसेस है, ये बोन नजर आ रही है, वहां जाके अटैचमेंट है। सेम है, सबकी पोस्टीरियर हमारी स्पाइनल नर्व आ जाती है। ठीक है, एक्शन क्या है इसका, एक्ट यूनिलैटरली, ये यूनिलैटरली एक्ट करता है। तो क्या करेगा, लेटरली फ्लेक्स करेगा वर्टिब्रल कॉलम को, और बायलैटरली एक्ट करेगा तो वर्टिब्रल कॉलम पे और हेड को एक्सटेंड करेगा। इरेक्टर स्पाइनी है मसल्स, तीनों कॉलम है, पूरा एक्शन भी इनका साथ होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, जब भी मसल्स का आएगा बेसिकली में यूनिलैटरली एक्ट करेगा तो कौन सा एक्शन होगा, इसकी लेटरली फ्लेक्स करेगा। बायलैटरली करेगा तो एक्सटेंड करेगा वर्टिब्रल कॉलम एंड हेड को फ्रॉम द फ्लेक्स पोजीशन। थर्ड इसका मसल्स आता है स्पाइनस। याद रखना ये इरेक्टर स्पाइनी जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहां पे सुपरफिशियल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट था एक्सट्रिंसिक का, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। ये जो स्पाइनलिस होता है मसल, द स्पाइनलिस मसल्स इज लोकेटेड मीडियली विद इन द इरेक्टर स्पाइन। इन तीनों मसल्स में मोस्ट मीडियल स्पाइनलिस आ जाता है। ये बीसीक्यू से बन सकता है। ठीक है, कौन सा मीडियल है, क्योंकि डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और लोकेशन क्या है आपके पास मसल्स की, ये इंपॉर्टेंट होती है। तो डायरेक्शन और लोकेशन के हिसाब से देखा जाएगा तो ये मोस्ट मीडियल आपके पास ग्रुप है 3 में। इट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल 3 मसल्स कॉलम। तीनों में सबसे छोटा स्पाइनलिस है, सबसे बड़ा लॉन्गिस्मस था, बीच में आपके पास इलियोकोस्टलिस था, और सबसे स्मॉल आपके पास स्पाइनलिस है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू थोरेसिक, सर्वाइसिस एंड कैपिटल्स। मींस इसके भी वही अटैचमेंट के हिसाब से जो है ना इसकी पोर्शन आते हैं, थोरेसिक, सर्वाइसिस एंड कैपिटल्स। अटैचमेंट इसमें ओरिजिन कॉमन टेंडिनस ओरिजिन है। अटैच कहाँ पे होंगे, स्पाइनस प्रोसेस पे होगा, C2 से C2 T1 to T8 and the occipital bone of the skull। इसको देखते हैं, ये आपके पास ब्लू कलर का जो मसल्स आपके पास नजर आ रहा है, ये देखें
ये आपके पास स्पाइनलिस मसल्स है। ये स्पाइनलिस मसल्स जो है वो कॉमन टेंडिनस ओरिजिन से जा रहा है, कॉमन टेंडिनस ओरिजिन से ये जाके अटैच हो रहा है स्पाइनस प्रोसेस पे अटैच हो रहा है C2 की, ये C2 की है, ठीक है। C2 से जा रहा है नीचे की तरफ T1 और T8 तक जा रहा है, और ऑक्सीपिटल बोन ऑफ द स्कल के पास जाएंगे इसके फाइबर्स। सेम फंक्शन है, इरेक्टर स्पाइनी के जो है यूनिलेटरली होगा तो लेटरली फ्लेक्स करवाएगा, बायलेटरली होगा तो एक्सटेंड करवाएगा वर्टिकल कॉलम। इसका BC2 ग्रेड मैंने रखा था तो A 60-year-old lady has complaint of lower back pain. On examination, she was painful on extension of vertebral column. Means जब lower back ache हो रहा है इसको, जब वो extend कर रही है vertebral column को तो painful होगा इसका. She got severe back strain. Which group of intrinsic muscle in the back mostly involved? 3 ग्रुप थे इंटेंसिक में, सुपरफिशियल, इंटरमीडिएट, डीप एंड अनग्रेड। कौन सा आंसर होना चाहिए इसका? इंटरमीडिएट। अब जो लास्ट आपके पास आया था है इंटेंसिक का, वो डीप है, स्मॉल मसल्स आ जाते हैं। ये जो आपके पास इंटेंसिक ग्रुप का डीप था, द डीप इंटेंसिक मसल्स आर लोकेटेड अंडरनीथ द इरेक्टर स्पाइनी। इरेक्टर स्पाइनी के नीचे हैं ये मसल्स। जैसे जैसे आप मसल्स के लेयर्स को हटाते जाओगे ना, उनके नाम सुपरफिशियल, इंटरमीडिएट, डीप दिया गया है, वो उनकी लेयर्स के हिसाब से दिया गया है। सुपरफिशियल मसल्स को रिमूव करते जाओगे, डीप आते जाएंगे आपके पास, and are known collectively as transversospinals. They are group of short muscles associated with transverse and the spinous process of the vertebral column. There are three major muscles in this group: the semispinalis, multifidus, and rotators. Semispinalis is the most superficial of the deep intrinsic muscles. Much like the intermediate muscles, it can be divided by its superior attachment to the thoracic, cervixes, and capitis. इसको भी इसी तरीके से डिवाइड किया गया है जैसे कि उनको डिवाइड किया गया था। Originate from the transfer process of C4 and T10 vertebrae. The fiber ascend 4 to 6 vertebral segments attached to the spinous process of C2 and T4. मैंने पहले बताया कि ये जो आपके पास ग्रुप है, डीप ग्रुप होता है, ये बिटवीन जो है ना आपके पास ट्रांसफर प्रोसेस और स्पाइनस प्रोसेस के दरमियान में ही होती है सारा। तो ये ओरिजिन कहाँ से लेगा? ट्रांसफर प्रोसेस से ले रहा है, तो जाके इंजर्शन स्पाइनस प्रोसेस पे करेगा। बस इतना से स्मॉल मसल्स हैं, ज्यादा ब्रॉड इनकी अटैचमेंट नहीं है। इनोवेशन पोस्टीरियर हमारे स्पाइनल नर्व से, एक्शन क्या है इसका? एक्सटेंड एंड कॉन्ट्रालेटरल रोटेट द हेड एंड वर्टिब्रल कॉलम। एक्सटेंशन करवाएगा मसल, एक्सटेंड करवाएगा वर्टिब्रल कॉलम को, लेकिन जो रोटेशन ऑफ द हेड है वो कॉन्ट्रालेटरल कराएगा। मींस रोटेशन ऑफ द हेड एंड वर्टिब्रल कॉलम दोनों की कॉन्ट्रालेटरल रोटेशन कराएगा, एक्सटेंशन करवाएगा और कॉन्ट्रालेटरल रोटेट करवाएगा हेड एंड वर्टिब्रल कॉलम। ये मसल्स आपको सेमी स्पाइनल शो करती हूँ। ये सेमी स्पाइनलिस ब्राउन कलर का जो नजर आ रहा है, ये सेमी स्पाइनलिस है। ये सेमी स्पाइनलिस जो मसल्स है ब्राउन कलर का, आपको देखिएगा कहां से ओरिजिन ले रहे हैं ये। इनकी ओरिजिन स्टार्ट हो रही है ट्रांसफर प्रोसेस से, स्टार्ट हो रही है। ये ट्रांसफर प्रोसेस है, ये सारे लैटरली ट्रांसफर प्रोसेस आ रहे हैं आपके पास। ये ट्रांसफर प्रोसेस से अटैचमेंट ओरिजिनेट हो रहा है C4 से T10 तक, और जाके इंसर्ट हो रहा है स्पाइनस प्रोसेस पे C2 एंड C4 पे, और ऑक्सीपिटल बोन पे। ये ऑक्सीपिटल बोन ऑक्सीपिटल पे। इरेक्टर स्पाइनी के नीचे होता है ये वाला भी। सेकंड जो इसका ग्रुप का मसल्स है वो मल्टीपीडियस है।
मल्टीफिडस जो है, इट इज द मल्टीफिडस इज लोकेटेड अंडरनीथ द सेमीस्पाइनलिस मसल्स। जो सेमीस्पाइनलिस मसल्स है उसके नीचे आ जाता है। इट इज बेस्ट डेवलप्ड इन द लंबर एरिया। Attachment has a broad origin, arises from the sacrum, posterior iliac spine, common tendinous origin of the erector spinae, mammillary process of the lumbar vertebra, and the transfer process of T1 to T3, and the articular process of the C4 and C7. इतनी ज्यादा आपको इसकी बहुत ज्यादा मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है कि आप इसको बार-बार करो कि ओरिजिन कहाँ से है, बस आपके जहन में होनी चाहिए कि ओरिजिन ये इसकी ब्रॉड है और यहाँ से आ रही ओरिजिन है। ये फाइबर असेंड करेंगे, 2 to 4 वर्टिब्रल सेगमेंट असेंड करेंगे। इतने वर्टिब्रल सेगमेंट को असेंड करने के बाद ये अटैच हो जाएंगे स्पाइनल प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रा। पोस्टीरियर एमआई ऑफ स्पाइनल नर्व इसकी इनोवेशन से एक्शन क्या है? स्टेबलाइज द वर्टिब्रल कॉलम। ये मल्टीफिडस मसल्स आ जाता है, इसकी ब्रॉड ओरिजिन है और ये जाके इंसर्ट हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। रोटेटर्स में आ जाते हैं। द रोटेटर्स आर द मोस्ट प्रोमिनेंट इन द thoracic region. Attachment originates from the vertebral transfer processes. So originate होंगे, the fiber ascend and attach to the lamina and the spinous process of the immediate superior vertebrae. वही posterior innervations rami of spinal nerves की innervations में आती हैं, stabilize करते हैं vertebral column को and has the proprioceptive function. Rotators की diagrams. कुछ माइनर भी आ जाते हैं आपके पास, डीप इंटेंसिटी मसल्स, जिनके जस्ट आप नेम रिकॉल करना है। इंटरस्पाइनल्स आ जाते हैं, इंटरट्रांसवर्सरी है, लेवेटर्स पोस्टेरम आ जाते हैं। ये स्पैन बिटवीन एडजेसेंट स्पाइनस प्रोसेस एंड एक्ट टू स्टेबलाइज द वर्टिब्रल कॉलम। इंटरवर्सरी ये स्पैन बिटवीन द एडजेसेंट ट्रांसफर प्रोसेस और एक्ट टू स्टेबलाइज, ये सारे स्टेबलाइज करते हैं ना वर्टिब्रल कॉलम को, ठीक है। ये माइनर डीप ग्रुप मसल्स में आ जाता है। इसमें हम मसल्स ट्रायंगल करेंगे। हमारे जो बैक मसल्स है ना, उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे मसल्स ट्रायंगल फॉर्म होते हैं। ये मसल्स ट्रायंगल जो है, इनमें से एक आपके पास डिस्ट्रिक्ट आ सकता है। तो मसल्स ट्रायंगल के जो मार्जिन होते हैं ना आपके पास सर्टेन इंटरसेक्टिंग मसल्स के, और वो मसल्स और बोन मिलके फॉर्म करते हैं, एक स्पेस बनाते हैं, इसको ट्रायंगुलर स्पेस क्रिएट करते हैं। डिस्टिंक्टिव ट्रायंगुलर स्पेस आपके पास है। तो मार्जिन ऑफ द सर्टेन इंटरसेक्टिंग मसल्स एंड द बोन फॉर्म अ डिस्टिंक्टिव ट्रायंगुलर स्पेस इन द बैक। उसमें से आपके पास जो मस्कुलर ट्रायंगल में से एक ट्रायंगल आता है, उसे कहते हैं ऑस्कुलेटरी ट्रायंगल्स। ये ऑस्कुलेटरी ट्रायंगल्स क्या होता है, किन किन के दरमियान में बनता है? अब इसके आप ट्रायंगल्स की आपने पता होगा, ट्रायंगल्स की बेस होती है, उसकी 2 वॉल्स होती हैं। तो इसकी भी अभी स्मॉल ट्रायंगुलर आपके पास स्मॉल ट्रायंगुलर एरिया है जो बाउंडेड अपर साइड पे मिलेगा आपको बैक के। इसकी मीडियल बाउंड्री जो है ना, वो बना रहा है ट्रेपेजियस, ठीक है, और लेटरल बाउंड्री बना रहा है स्कैपुला, और इंफीरियरली जो इसकी बेस बना रहा है वो लैटिनस डोर्साई। ये ट्रायंगल आपको दिखाते हैं। ये ट्रायंगल आपको नजर आएगा। ये ट्रायंगल में आप ये देखेंगे, ये ट्रेपेजियस नजर आ रहा है। ट्रेपेजियस क्या बना रहा था? इसकी मीडियल बाउंड्री बना रहा है। ये मीडियल बाउंड्री ट्रेपेजियस बना रहा है। नीचे लेटिसमस डोर्साई आ रहा है, वो इसकी बना रहा है, बेस बना रहा है, इंफीरियर बाउंड्री कह लो उसको। और स्कैपुला आ रहा है ना, स्कैपुला का जो मीडियल बॉर्डर है वो मोस्ट लेटरली आ जाता है, तो इसका लेटरल बॉर्डर में आ रहा है। मींस ट्रेपेजियस आपके पास मीडियली आ रहा है, स्कैपुला लेटरली आ रहा है, और बेस जो है ना इस ट्रायंगल की वो बना रही है, जिसे हम इंफीरियर बॉर्डर भी कह सकते हैं, वो बना रहा है लेटरल। ये ट्रायंगल जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है?
इस ट्रायंगल की इंपॉर्टेंस ये है कि आप जो है इस ट्रायंगल में ये ओनली पार्ट होता है बैक का जो आपके पास किसी मसल से कवर्ड नहीं है, कोई बिग मसल से इसको कवर्ड नहीं करा। तो रेस्पिरेटरी साउंड जो ऑस्कल्टेट करते हैं ना, ऑस्कल्टेटरी ट्रायंगल, जब भी तो कह रहे हो यहाँ पे रेस्पिरेटरी साउंड आप ऑस्कल्टेट कर सकते हो। कौन सा रिस्पॉन्सिव लोब्स का? रेस्पिरेटरी साउंड ऑफ द अपेक्स ऑफ द लोअर लोब heard through our stethoscope are better heard over this triangle on each side. दोनों तरफ से आप यहाँ पे कर सकते हो। करते हैं ना स्टार्ट पीछे साउंड सुनने के लिए, तो आपके पास लोअर लेफ्ट साउंड जो है ना अपेक्स ऑफ द लोअर लोब के वो हर्ड होंगे इस ऑस्कल्टेटरी ट्रायंगल में। इसका आपके एक रूल बन सकता है आराम से। इसकी बाउंड्री कौन क्रिएट कर रहा है, इसके क्लिनिकली क्या इंपॉर्टेंस है। जो आपके पास सेकंड ट्रायंगल है वो नीचे आता है, ये अपर ट्रायंगल आया था आपके पास ऊपर था, पर बैक पे लंबर ट्रायंगल नीचे आ जाता है, ये सेकंड ट्रायंगल है। ठीक है, another small triangle है bounded medially by the lateral border of latissimus dorsi, means इसकी जो medial boundary है वो latissimus dorsi बना रहा है, and laterally by the posterior border of the external oblique muscles, जो lateral boundary है वो external oblique muscles form कर रहा है, एंड इंफीरियरली आपके पास जो बेस है वो क्रिएट हो रही है इलियक क्रेस्ट पे। ठीक है, इलियक क्रेस्ट इसकी बेस बना रहा है, तो इंफीरियर बाउंड्री कहलाता है। एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स जो है ये एब्डोमेन का मसल्स है, एब्डोमिनल मसल से इंटीरियरली लाई करता है, इसकी डायरेक्शन होती है, तो ये भी हमें मिलेगा। एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स इसकी पोस्टीरियर, उसका जो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल का पोस्टीरियर बॉर्डर था वो इसकी लेटरल बाउंड्री बना रहा है, मोस्ट मीडियली इसके लैटिसिमस डोर्साई आ जाता है। The occasional hernia at this side is called lumbar hernia, या इस साइड पे आपके पास हर्निया के चांसेस होते हैं, तो यहाँ पर लंबर हर्निया कहलाता है। At this side is called lumbar hernia, ये आपको ट्रायंगल शो करता है। ये आपको जो पीछे आप देख रहे हो बैक पे जो आपको नजर आ रहा है मसल्स, ये लैटिसिमस डोर्साई आ जाता है। ठीक है, और ये पूरा इलियक क्रेस्ट हिप बोन का आपको नजर आएगा, ये इंफीरियर बाउंड्री बना रहा है जिसको बेस कहते हैं आपका, ये इसकी बना रहा है इलियक क्रेस्ट, इसकी बेस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, और बाकी जो आपको मूव कर रहे हो ना यहाँ पे लेटरली आप देख रहे हो, तो लेटरली आपके पास ये जो मसल्स आ रहा है एब्डोमेन की तरफ जा रहा है, ब्रोड्स का मसल्स, इसको कहते हैं एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स, और ट्रायंगल के जो अंदर एक मसल्स है उसको कहते हैं इंटरनल ऑब्लिक मसल्स। तो ये ट्रायंगल था, यहाँ पर लंबर हर्निया के चांसेस होते हैं, इसको डिस्कस किया था। क्लिनिकल कोरिलेट्स क्या है? जो मसल्स ऑफ द बैक है उसके क्लिनिकल कोरिलेट्स में आते हैं बैक स्ट्रेन, स्प्रेन एंड स्पाज़म। एडुकेट वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग एंड एक्सरसाइज टू इंक्रीज द टोनस ऑफ द कोर मसल्स, प्रिवेंट मेनी स्ट्रेन एंड स्प्रेन, कॉमन कॉज ऑफ लोअर बैक पेन। Back sprain is an injury in which only ligamentous tissue or attachment of the ligament to the bone is involved without dislocation of or fracture. जो स्प्रेन होता है उसमें लिगामेंट्स जो होते हैं ना वो इन्वॉल्व होते हैं, उनमें इंजरी आती है, बोन के अंदर नहीं आती। ठीक है, विदाउट डिस्लोकेशन, ना ही तो बोन डिस्लोकेटेड होती है ना ही बोन फ्रैक्चर होती है, वो इन्वॉल्व नहीं होती है। स्प्रेन में सिर्फ लिगामेंट की इंजरी आती है, तो उसको कहते हैं बैक स्प्रेन। Back sprain result from excessive strong contraction related to movement of vertebral column, such as excessive extension or rotation. जो बहुत ज्यादा excessively extension और rotation करते हैं ना vertebral column की, उनके muscles जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा work की वजह से excessive strong contraction की वजह से क्या होता है, back sprain हो जाता है। उनके ligaments जो होते हैं ना उनमें इंजरीज आ जाती है। जो आपके पास स्ट्रेन होता है, बैक स्ट्रेन होता है, इज अ कॉमन इंजरी इन द पीपल हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द स्पोर्ट्स। जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें बैक स्ट्रेन्स आते हैं। इट रिजल्ट्स फ्रॉम ओवरली स्ट्रॉन्ग मस्कुलर कंट्रैक्शन, बहुत ज्यादा मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास जो डेवलप होगा दैट इज स्ट्रेन होगा। स्ट्रेन में आपके पास लिगामेंट्स की हो रही है इंजरी आ रही है, इस स्ट्रेन में आपके पास मसल्स की इंजरी आ रही है। ये स्पोर्ट्स के पास आप जो स्पोर्ट्स के होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं उनमें ज्यादा है। द स्ट्रेन इन्वॉल्व सम डिग्री ऑफ द स्ट्रेचिंग और माइक्रोस्कोपिक टियरिंग ऑफ मसल्स फाइबर। इसमें क्या होती है,
या तो स्ट्रेच हो जाता है मसल स्ट्रेन में, या फिर उसके क्या माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो मसल्स में टियर मिलता है। The muscles usually involved are those producing movement of lumbar joint, especially the erector spinae. ये BCQ आपको बन सकता है। तो मसल्स जो आपके पास स्पेन में इन्वॉल्व होते हैं, कौन सा इन्वॉल्व होता है उसमें, इरेक्टर स्पाइन होते हैं, क्योंकि लंबर एरिया जो होता है ना वो ज्यादा इन्वॉल्व होता है। क्यों इन्वॉल्व होता है लंबर एरिया, उसका भी रीजन होंगे। If the weight is not properly balanced on the vertebral column, strain is exerted on the muscles. क्या होता है कि प्रॉपर्ली एकदम से डिसबैलेंस हो जाता है ना, स्पोर्ट्समैन जो कर रहे होते हैं जब एक्टिविटी, तो उनका डिसबैलेंस की वजह से स्ट्रेन डेवलप होता है। और मोस्टली जो इरेक्टर स्पाइनी होते हैं वो बैलेंस करके रखते हैं, सपोर्ट स्टेबलाइज करके रखते हैं आपके वर्टिब्रल कॉलम पे। और लंबर एरिया ज्यादा होता है आपके पास, जो वेट ट्रांसफर कर रहा होता है आपका पूरे के पूरे नीचे लिम्स के ऊपर। एज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, इन दोनों का जो स्प्रेन और स्ट्रेन होता है ना, उनका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। तो बैक मसल्स क्या होते हैं, गो इनटू स्पाज्म आफ्टर इंजरी और रिस्पांस टू इन्फ्लेमेशन। ये इंजरी आई है या इन्फ्लेमेशन आई है, उसके रिस्पांस में उसका सिम्टम आप कह सकते हो स्पाज्म है, या तो स्ट्रेन आपके पास ये स्ट्रेन दोनों आएगा तो उसका सिम्टम जो अपीयर होगा ना वो स्पाज्म होगा। अगर मसल्स में इंजरी या इन्फ्लेमेशन होगा तो मसल्स फौरन भी क्या करेगा, स्पाज्म में चला जाएगा। स्पाज्म क्या है, इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन ऑफ वन और मोर मसल्स ग्रुप। स्पाज्म are attended by the cramps, pain and interference with the function, producing involuntary movement and distortion. स्पाज्म में क्या होगा, स्पाज्म में ये होगा जब भी इरेक्टर स्पाइनी में स्पाज्म आता है तो बैकएक की कंप्लेन कर रहे होते हैं, आते हैं पेशेंट आते हैं कि भाई मुझे बैकएक हो रहा है, तो उसको पोस्चर आप देखोगे कि बिल्कुल मींस उसका पोस्चर आपको वो नहीं मिलेगा जो नॉर्मल पोस्चर वर्टिब्रल कॉलम का होगा। मींस उसकी डिस्टॉर्शन हो चुकी होगी, और इनवॉलंटरी मूवमेंट मींस वो मूवमेंट जो पोस्चर की होती है उसके हिसाब से नहीं चल रहा होगा, बिल्कुल उसका पोस्चर चेंज होगा, उसको क्रैम्प और पेन हो रहे होंगे। ठीक है, उसका जो फंक्शन होता है मसल्स का वो जो है ना इंटरफियर होता है स्पाज्म में। तो स्पाज्म जो है वो रिस्पॉन्स है आपके पास स्ट्रेन का और स्ट्रेन का। मोस्टली जो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं वो इरेक्टर स्पाइनस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो मसल्स ऑफ द बैक को हमने डिवाइड किया था 3 ग्रुप में। सुपरफिशियल में बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, सुपरफिशियल में बार बार कह रही हूँ, सुपरफिशियल ग्रुप एसोसिएटेड होते हैं मूवमेंट ऑफ द शोल्डर्स। इंटरमीडिएट ग्रुप आ जाता है, वो एसोसिएटेड होंगे मूवमेंट ऑफ द थोरेसिक क्रेस्ट। डीप ग्रुप जो कि इंटेंसिटी ग्रुप कहलाता है, वो एसोसिएटेड होंगे मूवमेंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। डीप मसल्स जो होते हैं एम्ब्रियोलॉजिकली बैक से ही ओरिजिनेट होते हैं, डेवलप होते हैं, तो इसलिए इसको इंटेंसिटी में डाल दिया गया है। सुपरफिशियल और इंटरमीडिएट दोनों को मिला के एक्सटेंसिव ग्रुप कहते हैं। सुपरफिशियल ग्रुप के अंदर मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि आपके बड़े बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स आ जाते हैं, वो ये 5 मसल्स आ जाते हैं। ट्रेपेजियस आ जाता है, लैटिनस डोर्साई आ जाता है, लेवाटर स्कैपुली आ जाती है, रोम्बोइड माइनर एंड मेजर आ जाते हैं। इनके एक्शंस आपको नर्व सप्लाई एक्शंस और डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए, लोकेशन कहाँ पर है, कौन ऊपर है कौन सा नीचे है मसल्स। इंटरमीडिएट ग्रुप में ये आ जाता है आपके पास सैटस पोस्टीरियर सुपीरियर आ जाता है। ठीक है, इसका एक्शन पता होना चाहिए आपको क्या है। सैटस पोस्टीरियर इंफीरियर आ जाता है, इसका भी एक्शन आपको पता होना चाहिए कि क्या है, कौन सा फोर्स एक्सपैंशन में इन्वॉल्व होता है, कौन सा इंस्पायरेशन में इन्वॉल्व होता है। इंट्रिंसिक मसल्स में आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है वो सुपरफिशियल ग्रुप है, जिसको कलेक्टिवली इरेक्टर स्पाइन कहते हैं। सॉरी, इंटरमीडिएट ग्रुप है जिसे कलेक्टिवली आपके पास कहते हैं इरेक्टर स्पाइन कहते हैं। इसका इंटरमीडिएट ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, मींस आपके पास जो एक्सटेंसिव ग्रुप था उसका सुपरफिशियल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो इंटेंसिव ग्रुप था उसका इंटरमीडिएट ग्रुप था। वो आप जरूर उसको अच्छी तरीके से कीजिएगा। वैसे ओवरऑल आपने सारे ही मसल्स को करने हैं, लेकिन इनको आप ध्यान में रखिएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि इनके एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है।
कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग बैक ऑफ द मसल से रिलेटेड आपके पास कुछ आप पूछना चाहते हैं?